Good morning students. Today we will start with chromosome structure. In last class we have started with different parts of chromosome in which we have discussed about centromeric region of chromosome. So what is centromeric region of the chromosome? Centromere is actually constricted region present in the chromosome and it is also known as kinetochore or primary constriction. Okay, and on the basis of position of the centromere as well as number of the centromere, we have discussed about morphological classification of chromosomes. Okay, so on the basis of position of centromere, chromosomes are four different types. One is metacentric chromosome, second is submetacentric chromosome, third is acrocentric chromosome, and the last one is telocentric chromosome. And on the basis of number of centromeric region in the chromosomes are three different types. One is polycentric chromosome, second is dicentric chromosome, and the last one is acentric chromosome. Okay, so today we will move towards another part of the chromosome, which is secondary construction second and secondary construction first, which is also known as nucleolar organizer region, telomere region, and satellite region. Okay, so first of all we will discuss about secondary construction second. This is the electron microscopic diagram of the chromosome, in which we have discussed about this area, which is primary construction or centromeric region. Now we will move towards secondary construction second region. Okay, secondary construction second region, it is also a constricted region present in the chromosome, and यह वह पार्ट होता है क्रोमोसोम्स का जहाँ पे क्रोमोसोम का ब्रेकेज होता है और रीयूनियन होता है. ओके, यानी वो फिर वहां से टूटते हैं और फिर से रिफ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं. तो वह पोर्शन जो है वो कौन सा पोर्शन है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड कहलाएगा. और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड जो होता है वो पर्टिकुलर क्रोमोसोम के लिए पर्टिकुलर जगह पे उपस्थित होता है. ओके, so we can say the location of secondary construction second is constant for a particular chromosome. Okay, इसके अलावा देखिए secondary construction site जो है, मैंने क्या बताया अभी, it is site where breakage and subsequent fusion of chromosome can occur. यहाँ पे क्रोमोसोम का ब्रेकेज होता है और फ्यूजन होता है. कौन से एरिया पे होगा? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड पे होगा. और ह्यूमन बीइंग के अंदर, या यूं कहिए कि मैन के अंदर जो है क्रोमोसोम नंबर 1, 10, 13 and 16 and Y chromosome have secondary construction second area. Okay, so थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग यहाँ लिख लेते हैं. Secondary construction second, the location of secondary construction second region constant for a particular chromosome. For a particular chromosome. Okay, इस रीजन का जो अलग अलग क्रोमोसोम में अलग अलग इनकी जगह जो है पोजीशन फिक्स होती है, एंड इट इज द साइट वेयर chromosome breakage and subsequent fusion can occur. ओके, ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन कौन सी क्रोमोसोम? इन मैन क्रोमोसोम नंबर 1, 10, 13, 16 and Y chromosome has secondary construction second region. Okay, so secondary construction second region जो है वो अलग अलग क्रोमोसोम में अलग अलग जगह पे उपस्थित हो सकता है, पर एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम में एक ही जगह पे उपस्थित होगा. दूसरा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड रीजन जो है वो क्या काम करता है? इसी जगह पे क्रोमोसोम का ब्रेकेज होता है और फिर से फ्यूजन हो जाता है. और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोसोम 1, 10, 13, 16 एंड Y क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड रीजन जो है वो पाया जाता है. अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट के बारे में, विच इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. देखिए, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन नाम से क्या पता चल रहा है कि वह क्रोमोसोम का वह रीजन जो कि न्यूक्लियस में पाए जाने वाले न्यूक्लियोलस को बनाने में रोल प्ले करता है. ठीक है, तो वह कंस्ट्रक्टेड क्रोमोसोम का वह कंस्ट्रक्टेड पोर्शन विच इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, और वी कैन से न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन
ये कहाँ पार्टिसिपेट करेगा? ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियोलस को बनाने में रोल प्ले करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहेंगे। ह्यूमन बीइंग के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है 13, 14, 15, 21, 22 एंड वाई क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियोलस बनाने में हेल्प करते हैं। जो न्यूक्लियोलस होता है ना, केंद्र के अंदर पाया जाता है, वो न्यूक्लियोलस रीजन जो है, जिसे हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो वो राइबोसोम फैक्ट्री को बनाने के लिए क्रोमोसोम के कौन से क्रोमोसोम? 13, 14, 15, 21, 22 एंड वाई क्रोमोसोम, वो ये क्रोमोसोम उस न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं, क्या रहेगा? सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट, ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। It is also known as nucleolar organizer region because it is necessary for the formation of nucleolus. Okay? Human chromosome (13, 14, 15, 21, 22) and Y chromosome has secondary construction first and they participate in the formation of nucleolus. Okay? तो ये बात हुई कि न्यूक्लियोलस रीजन जो है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन जो है, जिसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट भी कह रहे हैं, ये किस में रोल प्ले करेगा? ये न्यूक्लियोलस को बनाने में रोल प्ले करता है। तो ह्यूमन क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21, 22 और वाई क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियोलस को बनाने में रोल प्ले करते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट है, उसके बियॉन्ड जो एक नॉब लाइक पोर्शन पाया जाता है क्रोमोसोम का, वह पोर्शन क्या कहलाएगा? सेटेलाइट। ओके? और वह क्रोमोसोम जिसके अंदर ये न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन के पीछे ये नॉब लाइक पार्ट पाया जाएगा, वह क्रोमोसोम क्या कहलाएंगे? सेट क्रोमोसोम कहलाएंगे। ठीक है? तो सैटेलाइट रीजन की बात करें अगर हम यहाँ पे, सैटेलाइट रीजन जो था हमारा फिफ्थ रीजन, so the part of chromosome beyond the nucleolar organizer region is very short or knob-like. Or appear like a sphere. Okay? Appear like a sphere. This part is known as satellite. And the chromosome which has satellite region they are known as set chromosome. They are known as set chromosome. What is the full form of set? सेट का फुल फॉर्म जो होगा वो क्या होगा? साइन एसिड थाइमो न्यूक्लिनिको
थाइमोन्यूक्लिनिको। ओके, सो सैटेलाइट का क्या मतलब होगा कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन के पीछे जो क्रोमोसोम का छोटा सा स्फीयर लाइक नॉब लाइक जो हिस्सा होता है वह पोर्शन क्या कहलाता है, सैटेलाइट कहलाएगा। और वह क्रोमोसोम जिसके अंदर सैटेलाइट एरिया पाया जाता है, सैटेलाइट वाला पोर्शन पाया जाता है, दे आर नोन एज सेट क्रोमोसोम। दैट मीन्स ह्यूमन क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21, 22 एंड वाई क्रोमोसोम दे आर नोन एज सेट क्रोमोसोम। ओके, एंड लास्ट में हम लोग बात करें टेलोमेरिक रीजन के बारे में, द लास्ट पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम। टेलोमेरिक पोर्शन जो होता है क्रोमोसोम का, वह एक्चुअल में क्रोमोसोम का सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है। और टेलोमेरिक पोर्शन जो है क्रोमोसोम का, वो एक्चुअल में किसमें रोल प्ले करेगा, ये क्रोमोसोम को आपस में, जो क्रोमोसोम के सिरे होते हैं उनको आपस में चिपकने से रोकने का काम करता है। क्या काम करेगा, जो इनके एंड्स है क्रोमोसोम को वो आपस में चिपक ना जाए, स्टिक नहीं कर जाए, इसीलिए वो क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करता है, तो प्रोटेक्ट करके रखता है। तो टेलोमेरिक एंड जो है वो क्या काम करेगा, मेन काम होगा क्रोमोसोम को आपस में चिपकने से रोक के रखना। सो लास्ट वाला पोर्शन क्या हो जाएगा क्रोमोसोम का, टेलोमियर। तो टेलोमियर क्या होगा, इट इज द टिप ऑफ द क्रोमोसोम, द टिप ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेलोमेरिक रीजन, टेलोमियर और टेलोमेरिक रीजन। ठीक है, क्रोमोसोम का जो सिरा होता है वो क्या कहलाएगा, टेलोमेरिक रीजन कहलाएगा। एंड इट प्रिवेंट द एंड ऑफ क्रोमोसोम stick together. ठीक है, इसके अलावा it is a specially modified region of the chromosome it is specially a modified region of the chromosome for attachment with nuclear envelope. ओके, सो जो टेलोमेरिक रीजन होगा वो क्रोमोसोम का सबसे एंड पोर्शन होगा, टिप वाला पोर्शन होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज टेलोमियर और टेलोमेरिक रीजन। इसका मेन काम क्या होता है, क्रोमोसोम के सिरों को आपस में चिपकने से रोकने का काम होता है। दूसरा, क्रोमोसोम का ये स्पेशली मॉडिफाइड पोर्शन होता है जो कि इस वाले पोर्शन से क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप से अटैच हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे हुए क्रोमोसोम के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं उनके बारे में हमने बात की। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये वाला पोर्शन जो होगा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहलाएगा। उससे पहले हम लोग बात करें कि एक क्रोमोसोम जो है वो 2 क्रोमेटिड से बना हुआ होगा और एक क्रोमेटिड जो होगा वो 2 क्रोमोनिमेटा से बना हुआ होगा। क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ रहता है। हिस्टोन प्रोटीन फिर से 5 अलग अलग प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ओके, और क्रोमोसोम्स के अंदर डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं। उसकी चारों तरफ पेलिकल नामक कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ओके, जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगा वो सेंट्रोमेरिक रीजन कहलाएगा। ये वाला रीजन क्रोमोसोम का वह रीजन होता है जहाँ पे कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम यहाँ से सेपरेट होते हैं। तो ये वाला पोर्शन होगा। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंड रीजन जो है वह क्रोमोसोम के अंदर पाया जाने वाला वह कंस्ट्रक्टेड पोर्शन होता है जहाँ से क्रोमोसोम का सब्सिक्वेंट ब्रेकेज एंड रीयूनियन होता है, फिर से फ्यूजन हो जाता है। उसके अलावा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन फर्स्ट यानी कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन जो है वो नाम से ही पता चल रहा है कि ये वाला पोर्शन जो है वो क्रोमोसोम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियोलस को बनाने में रोल प्ले करता है। तो ह्यूमन क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21 एंड 22 जो है वो न्यूक्लियोलस बनाने में हेल्प करेंगे। तो और न्यूक्लियर रीजन के पीछे जो नॉब लाइक पोर्शन पाया जाता है क्रोमोसोम के अंदर
वह क्या कहलाएगा, सेटेलाइट पोर्शन कहलाएगा। इसके अलावा क्रोमोसोम की जो सिरे होते हैं वो टेलोमेयर्स कहलाते हैं, जो कि क्रोमोसोम को आपस में स्टिक करने से बचाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम। सो आप लोग इसे पढ़िए, समझिए, और कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे साथ ग्रुप में डिस्कस करिए। ओके, थैंक यू सो मच।